नमस्कार, इवनिंग न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। सब तो पहला खबरां ਦਾ रुख पंजाब ਵੱਲ ਨੂੰ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ BKU ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। दिवाली के दूजे दिन विश्वकर्मा दिवस वाले दिन जो पंजाब के मुख्य मंत्री अपने विधान सभा खेत्र धूरी पहुंचे सी तो उन्होंने तो एक सवाल पूछा गया। इस ते उन्होंने कहा कि असी तो सब कुछ मन बैठे हाँ, पता नहीं धरने ते किसान क्यों बैठे हुए हैं। इस बयान ते किसान आगू ने पलटवार करते हुए कहा कि जेकर साडी गल मन्नी गई हुंदी तां हज़ारां दी संख्या विच किसान सड़कों ते नहीं बैठे हुंदे। असी पागल नहीं जो धरने ते बैठे हाँ। देखो मैनू वो मिल के गए सी, 3 घंटे लंबी मीटिंग हुई सी। ਅੱਧੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਮ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ BBMB ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ 2220 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੁਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੱਥ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਵੀ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੂ, ਆਹ ਐਂ ਲਾਗੂ ਹੋ, ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜ ਜੂਗਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੈਠਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਕੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਸੌਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ नहीं है। तू ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। पेरोल पर जेल से बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने हनीप्रीत को नया नाम दिया है। राम रहीम ने हनीप्रीत को रूहानी दीदी के रूप में नहीं पहचान दी है। उन्होंने कहा कि हनीप्रीत को अब रूहानी दीदी के नाम से पहचाना जाएगा। आपको बता दें कि राम रहीम के पसंदीदा लोगों में से एक हनीप्रीत विवादों में रह चुकी हैं और जेल भी जा चुकी हैं। साथ ही राम रहीम ने गद्दी और गुरु बदलने की चर्चाओं पर भी विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि डेरे के गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। डेरे पर साध संगत को संबोधित करते हुए राम रहीम ने 2 बयान जारी किए। हमने कितनी चिट्ठियों में लिख दी एक बात आपने सुनी है, पढ़ी है कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, 1,00,000%, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। पता नहीं क्या खाज उठती है, कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाते हैं, फिर खाज उठती है, फिर शुरू हो जाते हैं। हमें सूत्रों से पता चला, ये सूत्र नहीं मिले आज तक। कहां रहते हैं ये सूत्र नाम का प्राणी? हम ढूंढा, काफी ढूंढा, ये अज्ञात सूत्र होता किधर है? कितना कमाल है ना, सिर्फ लिखना ही अज्ञात सूत्रों से। बुरा ना मनाना भाई, हमारे चौथा स्तंभ तो क्योंकि निकल जाती है, मुंह आए बात रहती नहीं, हमसे पंगा यही है।
हम कोई आपको बुरा नहीं कहना चाहते, पर ये क्या है, हमने इतनी चिट्ठियों में भी लिख दिया हैंड राइटिंग से अपनी, और आज बोल दिया कि लाखों बार कहलवा लो हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। और हमने अपनी साध संगत को भी पिछली बार यही कसम दिलाई थी कि गुरु के समतुल्य समझना, अपनी आशिकी को बेइंतहा दाग लगवाना है। और इन बच्चों ने हमें अब तोहफा दिया था यही कि अपने गुरु पे 100% दृढ़ यकीन करेंगे, उसके बराबर किसी को नहीं। आज देख लो आप सबके हाथ खड़े हैं, लाइव वालों के भी, यहाँ सेवादारों के भी, और हाथ नीचे नहीं हो रहे, ज्यों के त्यों खड़े हैं कि हाँ गुरुजी हमने ये तोहफा आपको दिया है कि गुरु के समतुल्य बराबर किसी को नहीं मानना। तो हाँ, नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक और खुशियां बख्शे और समुंदर दे खुशियों। और हमारी बिटिया का हमने एक नाम दे दिया, नाम तो वही है वैसे, नाम बिटिया का नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है, साथ संगत भी जानती है और जो 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 वो भी जानते हैं, बस जो जो इतने काफी, जो जो नाम भी होता कईयों का। हाँ, एक बिटिया का नाम है, एक हमारे वकील सज्जन कहते होते हैं, तो कहने का मतलब ऐसे जो जो थोड़ा सा गैप डाल के, तो पता है कि उसका नाम हनीप्रीत है, बिटिया का, हमारी का, धर्म की बेटी है, हमारा मुख्य शिष्य है, हमने बोल दिया। और उनका एक हमने छोटा सा नाम दे दिया, क्योंकि सारे कहते थे गुरुजी दीदी दीदी कहते, पता नहीं चलता कि सारे ही दीदियां हैं, तो उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी। ताकि आप आसानी से थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया, रूदी बोलने में आसान हो जाता है। हरियाणा में भाजपा की सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। खट्टर ने कहा कि परिवार पहचान पत्र हरियाणा की आबादी का पूरा डाटा तैयार करने के लिए शुरू किया गया है। आयु के हिसाब के साथ लोगों की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही खट्टर ने सरकार के 8 साल पूरे होने पर 5S फॉर्मूला को भी बताया। 2022 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, 9वें वर्ष के भी लगभग 4 घंटे और ऊपर हो गए हैं, क्योंकि प्रातःकाल 11:30 बजे के लगभग शपथ हुई थी, अब 3 बजे हैं, तो 9वें वर्ष का प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर भी आप सबको, आप सबके माध्यम से हरियाणा की जनता को, पूरे बल्कि देश की जनता को, दिल्ली की जनता को मैं बधाई भी देता हूं, सबको शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि जनता का सहयोग इसी प्रकार से जैसे 8 साल मिला है, इसी प्रकार से वो मिलता रहेगा। देश से जम्मू कश्मीर का विलय करने वाले महाराजा हरि सिंह और भारतीय सेना के आने तक उरी में दुश्मनों को रोककर बलिदान देने वाले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को विलय दिवस पर आज पूरा जम्मू कश्मीर नमन कर रहा है। जम्मू में आज महाराजा हरि सिंह पार्क में बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना, कई वरिष्ठ नेता और अन्य कई संगठनों द्वारा महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और पुष्प अर्पित किए गए और महाराजा हरि सिंह के जय घोष भी लगाए गए। वहीं इस मौके पर आतिशबाजी भी हुई। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि यह महाराजा ही थे जिनकी वजह से आज जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ मुमकिन हुआ और आज ही के दिन 26 अक्टूबर 1947 के दिन जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ। आज हम दिवाली की तरह यह दिन मना रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और हर कोई महाराजा हरि सिंह को नमन कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर का विलय दिवस है। यह विलय दिवस वो दिन है जब आज ही के दिन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था और ये दिन हमारे लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त के समान महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर में जोश, जश्न, उत्साह, उत्सव के साथ लोग इस विलय दिवस को मना रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज हिसार के आदमपुर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने जवाहर नगर में माथा टेका। इसके बाद भगवंत मान ने कहा कि आप तेजी से उभर रही है। लोग जब खुद ब खुद बाहर निकले तब समझेंगे कि लोगों को नई कहानी लिखने के लिए तैयार बैठे हैं। नए विचार भारत की राजनीति में तेजी से उभर रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि अभी गुजरात और हिमाचल लड़ रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। हम नफरत करने वाली राजनीति को नहीं अपनाते। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर भी ताज होता है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगाने की मांग की है।
उन्होंने अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति और देश को विकसित बनाने के लिए देवी देवताओं के आशीर्वाद की जरूरत बताते हुए ऐसा कहा है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि नोट के एक तरफ गांधी जी की तस्वीर रहने दी जाए और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश जी की फोटो हो। वे इसके लिए पीएम मोदी को लेटर लिखने जा रहे हैं। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। हिमाचल और गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी लड़ाई अब धर्म पर आ गई है। चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की थी। अब भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इसे केजरीवाल का यू टर्न बताया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ये वही व्यक्ति है जिसने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में जाने से इनकार कर दिया था। कहा था कि वहां पर भगवान मेरी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा केजरीवाल ने स्वास्तिक का भी अपमान किया, लेकिन आज उन्हीं केजरीवाल ने यू टर्न ले लिया है। की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय के सचिव को आम आदमी पार्टी सरकार के प्रमुख दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम को कथित रूप से बंद करने की कोशिश करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। को सरकार की ओर से रोज दिल्ली की योगशाला में योग कराया जा रहा था और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसको हम जितना बढ़ा सकते हैं दिल्ली के एक एक नागरिक के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अफसरों पे दबाव डाल के 1 नवंबर से इस दिल्ली की योगशाला को बंद करने की साजिश रची। आजकल ये अफसरों पे बहुत तरह तरह के अफसरों को शिकार बना रहे हैं। कभी उनको सस्पेंड कर देते हैं बहाने से, कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर देते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो अफसरों को परेशान करके इन्होंने दिल्ली की योगशाला, अफसरों पे दबाव बना के इन्होंने दिल्ली की योगशाला बंद कराई। मैंने इस पूरे मुद्दे को देखा, मुख्यमंत्री जी से बात की और फिर ये मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इसको किसी भी कीमत पे बंद नहीं होने देना है, क्योंकि 17,000 लोगों का फायदा हो रहा है। सिर्फ 17,000 लोगों का नहीं, 17,000 परिवारों का हो रहा है और भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं लगातार। तो इसको किसी भी रूप में बंद नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी के पास फाइल भेजी है और मुख्यमंत्री जी ने उसको अप्रूव करके कि ये प्रोग्राम जैसा चल रहा था इसको ऐसे चलने दिया जाए। डिपसारू यूनिवर्सिटी जो हमारी है उसके जरिए चल रहा था, इसको एज इट इज चलने दिया जाए। इसकी फाइल अब एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेज दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी खुद देश में, दुनिया में योग को प्रमोट करते हैं, तो एलजी साहब भी इसको रोकने की जगह इसको आगे बढ़ाएंगे और तुरंत इसको अप्रूवल देके 17,000 ही नहीं बल्कि हो सकता है दिल्ली के लाखों लोगों के लिए योग का रोजाना सुबह सरकार की ओर से क्लास लगाई जा सके, इसका रास्ता साफ करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के मंडी में नकली दस्तावेजों के साथ एक चीनी महिला को गिरफ्तार किया गया है। वो जाली दस्तावेजों के साथ रह रही थी।
आपको बता दें, महिला से करीबन 7 लाख रुपए की नकदी को जब्त किया गया है। पुलिस ने 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। महिला जिले के चौतरा में मोनेस्ट्री में धार्मिक बौद्ध की शिक्षा ले रही थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के चौतरा में पकड़ी गई चीनी महिला नेपाली दस्तावेजों से भारत में आई थी। उसके पास चीन का पासपोर्ट है, वीजा आदि उसने नेपाली दस्तावेजों से बनवाए हैं। महिला ने खुद को नेपाली मूल की दर्शाने का प्रयास किया था। पुलिस ने उसे 6.5 लाख की भारतीय और 1 लाख के आसपास नेपाली करेंसी के साथ और 2 मोबाइल सहित कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस ने महिला को शनिवार को गिरफ्तार किया था। खबरों के दौर में आज बस इतना ही। अभी वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप बने रहिए TV9 पंजाब हिमाचल के साथ और देखते रहिए इवनिंग न्यूज। नमस्कार।